Hello, dear learners. Welcome back to Abit Siksha. Today's current affairs is brought to you by Abit Siksha. So let us begin. Today is 29th of August, and all the important articles from the Hindu and Assam Tribune and Indian Express are here. First one being remembering Golab Borbora. Shri Golab Borbora's, we are also celebrating one centenary year of remembrance of Shri Golab Borbora. So आज से वो भी शुरू है. So quite important. Okay, front page पे भी I have काफी बड़ा picture उनका. So it becomes important to remember him. ठीक है. Second is US call official calls conflict in Ukraine as Modi's war. Again उनका ऐसे इस तरीके से वेरी समथिंग विच इज वेरी स्ट्रिंजेंट ऐसा टाइप का कमेंट्स बहुत रेकर कर रहे हैं नॉट जस्ट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री बट ऑल्सो देयर senior officials are saying these kind of things which can which can have a negative impact on the bilateral relation that we have with USA. So this is what it is. Third is important. Okay, स्कूल एनरोलमेंट जो 3 से 11 ईयर का जो एज ग्रुप है वो डाउन हुआ है बाय 25 लाख. UDISC जो है जो काउंट करते हैं उन्होंने ये बताया. बहुत मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा आज के लिए आर्टिकल. आप लोगों को ये थोड़ा ध्यान से सुनना है. ठीक है, मैं जब तक आर्टिकल 3 पढ़ाती हूँ तब तक आपको ये ध्यान से सुनना होगा. So first is one of the chief architects of Assam's transformation through modern outlook, Golab Borbora, visionary leader, social reformer and a patriot. He was the first non-Congressy socialist leader, right? He rose after when the Janata Party rose. So Janata Party, as you might know, they are a very socialistic oriented party. They were a very socialistic oriented parties, and under the guidance of Jayaprakash Narayan and Ram Manohar Lohia, he was also a very strong socialist. And after the emergency period, Janata government came into power, and he was also the first non-Congressy chief minister of Assam, right? So this is very important. यहाँ पर अगर हम देखें, गोलाब बोरबोरा जी जो है, he was born on August 29, 1995 in गोलाघाट, Assam. और उनके पेरेंट्स और उनके सारे फैमिली भी इन्वॉल्व थे इन दी इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. So was he, but he was very young. As you can think, at that time, 25 से 1947, what 20-21 साल. So he was also very much involved in the politics and the freedom movement. He also joined the Quit India movement, and आप समझिए because ये पहले से इसी समय पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी बनाया गया था, राइट? एंड इस तरीके का वर्कर पार्टीज और वर्कर राइट्स के पार्टीज भी बने थे. दैट्स व्हाई ही आल्सो हैड दिस आइडिया ऑफ नोइंग सोशलिज्म. ठीक है, सोशलिज्म जो है उसको समझना उन्होंने शुरू किया था. जो एक्सपोजर उनको मिला वर्क राइट के बारे में जानने से, and disillusioned with the Congress, he joined the freedom movement and was arrested during the Quit India movement also. So you would see कि एक वे मतलब he, although Congress was the biggest force of power, ठीक है, at that time, and फिर भी वो जो है he was more into socialism, socialistic nature. Although Nehru was also a very socialistic leader, but इन दोनों के सोशलिज्म में थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा. मतलब Nehru मतलब although he was a secular, but he opted for a mixed type of economy, right? So आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस देखने को मिलेगा between the socialism of, let's say, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया and the socialism between नेहरू, ठीक है, गांधी. उनके बीच में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा. एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ सोशलिज्म कि सोशलिज्म एक बड़ा अम्ब्रेला है. ठीक है, उसी के अंदर मार्क्सियन सोशलिज्म आ जाता है, माओइस्ट सोशलिज्म आ जाता है, एंड देन कैपिटलिस्ट सोशल, नॉट कैपिटलिस्ट बल्कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी आता है. ठीक है, जैसे हम डेमोक्रेटिकली सोशलिस्ट है, चाइना इज कम्युनिस्ट. ठीक है, तो वो कम्युनिस्ट सोशलिज्म का भी एक एंगल होता है. तो सोशलिज्म इज अ बिगर अम्ब्रेला, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. ठीक है, जैसे माओइज्म इज माओ जो मार्क्सिज्म इज वन टाइप ऑफ सोशलिज्म. तो सोशलिज्म के भी बहुत टाइप के पैरामीटर्स होते हैं. एंड डेफिनेटली श्री गोलाब बोरबोरा एंड श्री नेहरू, ठीक है, दोनों का सोशलिज्म में थोड़ा सा डिफरेंसेस था. ठीक है,
Influenced by socialistic leaders like Lohia, Jayaprakash Narayan, Borbora become a prominent figure in socialist politics. Participation in major movements like refinery movement in Assam, ठीक है, रिफाइनरी मूवमेंट में, और 1974 में जो रेलवे स्ट्राइक हुआ था उसमें भी उनका काफी प्रोमिनेंट रोल था. आप अगर उनको देखें, वो राज्यसभा के लिए भी इलेक्ट हुए थे इन 1968, और वो बहुत एक्टिव एंड प्रिंसिपल्ड पार्लियामेंटेरियन थे उस समय पे. 1977 पे he became Assam's first non-Congress chief minister, implementing impactful reforms in education, healthcare, agriculture and infrastructure. However, his bold stances on issues like infiltration and local control of trade led to government's early fall. ठीक है, सो उनका जो बोल्ड स्टैंड था, जैसे जो इन्फिल्ट्रेशन का, उस समय जस्ट इन्फिल्ट्रेशन हो ही रहा था, राइट. सो वो इन्फिल्ट्रेशन जो है वो उनका काफी स्ट्रॉन्ग स्टैंड था कि हम वी डोंट वांट इन्फिल्ट्रेटर्स टू कम इनटू द स्टेट ऑफ असम, राइट. सो वहां से यू कैन सी दिस हिज स्टैंड, ये भी कभी कभी कंसिडर किया जाता है हिज स्टैंड एंड हिज विजन लेड टू द बर्थ ऑफ द पॉलिटिक्स इन असम, एंड जो शेप है नया, जो आपको गण परिषद के रूप में देखने को मिलेगा, हिज विजन केम इनटू लाइफ, ऐसा भी लोग मानते हैं. ठीक है, despite being sidelined in history, Borbora remains a vigilant advocate of social justice and ethical politics. Very true. ठीक है, on his birth centenary, the Assam government has launched initiative to honor his legacy and reintroduce his contribution to wider audience. ठीक है, सो ये काफी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में याद करना, जो आर्किटेक्ट है एक्चुअल. अगर आप देखें, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न असम का बहुत सारे लोग हैं जिनको हम ड्यू क्रेडिट नहीं देते, एंड टू रिमेम्बर देम इट इज वेरी नेसेसरी. ठीक है, टू रिमेम्बर देम, टू बाव ऑन दे, मतलब उनके बारे में सोच के उनको प्रणाम करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ऐसे लीडर्स को हमें याद करना चाहिए, बिकॉज irrespective of their socialist ideas or any ideas for that matter, their ideology be something, but he worked for the state. ठीक है, he worked for the state, and that's what is important. ठीक है, आपको अपने स्टेट के लिए, आपका अपने देश के लिए काम करना इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज यूएस ऑफिशियल कॉल्स कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन एज मोदीज वॉर. सो इसके लेट्स सी. ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें, यूएस के जो है पीटर नेवारो, ठीक है, उन्होंने कुछ कहा है कि एवरीबडी लूज इन यूएस लूजर्स बिकॉज टैक्स पेयर का मनी जो है वो रोकने के लिए जा रहा है, और जो युद्ध जो है वो मोदीज वॉर है. एब्सर्ड बातें करने में इनसे आगे कोई नहीं है. ठीक है, एब्सर्डिटी की भी एकदम मतलब हद पार कर, मतलब इट्स वेरी एब्सर्ड ऑल्सो हाउ दे आर, you know, how they are even saying it when they were the one who were pumping in money. यूक्रेन में they were the ones who were pumping money. उन्होंने ही under Joe Biden's government they had stretched this war, a 2-week war को उन्होंने stretch करके 2-3 years, almost 3-4 years को उन्होंने stretch किया है. They were the one who were pumping money. ठीक है, सब उन्होंने किया, and now just to test the waters, ठीक है, they are saying these kind of things, which is obviously not something which is new, and which something should not shock us, but obviously these new terminologies that they are bringing up, this is something new. So उसके बाद let us see क्या होता है. ठीक है, a day after US imposed 25% secondary sanctions, मतलब अब total 50% है. ठीक है, अब 50% है tariffs on Indian goods as a penalty for India's purchases of Russian oil, in addition to earlier 25% reciprocal tariffs. मतलब पहले तो उन्होंने हमारे ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए थे, क्योंकि इंडिया अपना प्रोटेक्शनिज्म करने के लिए टैरिफ्स लगाता है. उन्होंने हमारे पास ऊपर 25% लगाया, अब एक्स्ट्रा और 25% रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाया. द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन kept its tirade terming the conflict in Ukraine as Modi's war. Okay. The US opposition Democratic Party, however, criticized this move, saying that singling out India would hurt US as well. तो ये उनको एटलीस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी को पता है कि यू कैन नॉट जस्ट इट्स टू ह्यूज टू सिंगल आउट. ठीक है, इंडिया इज टू ह्यूज ऑफ अ कंट्री टू सिंगल आउट. नाउ यू कैन नॉट जस्ट सिंगल आउट अ कंट्री लाइक इंडिया, यू कैन नॉट. ठीक है, this is where US need to know the boundaries and need to understand the lines. ठीक है,
तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी को समझ में आता है, बट आई डोंट नो अबाउट द रिपब्लिकन्स वन, सो लेट अस सी. Former US official, including former Ambassador Kenneth Juster, expressed hope that the situation would be resolved at highest levels, potentially through meeting between US President Donald Trump and Prime Minister Narendra Modi. तो जो फॉर्मर जो यूएस ऑफिशियल्स थे उनको ये बात समझ में आता है एंड ये सिचुएशन को वो दे वांट टू रिजॉल्व दिस सिचुएशन एज सून एज पॉसिबल. India can get 25% tariff off now if they stop buying Russian oil and feeding the war machine, said Mr. Trump trade advisor Peter Navarro, who has been leading the charge on tariffs. तो ओके, अगर हमने रशियन ऑयल खरीदना भी बंद कर दिया तब भी तो 25% टैरिफ रहेगा, ठीक है, तब भी तो 25% टैरिफ रहेगा. सो दिस वाज रिगार्डिंग इट, ठीक है. तो ये एक्चुअली दे वांट with this 50% they want us to stop buying Russian oil, move to other countries, कोई और दूसरी कंट्री जो मे बी यूएस अलाई हो सकते हैं जिनसे हम ज्यादा में खरीदे. अब अगर हम जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? ओपेक नेशन. आपने तो ईरान से खरीदने मना के लिए अपने स्टॉप कर रखा है. तो अब ओपेक नेशन में क्या है, वी डेफिनेटली वी बाई ऑयल फ्रॉम ओपेक नेशन, राइट. बट यहाँ का कार्टेलाइजेशन जो है इतना प्राइस को इतना मैनिपुलेट करता है कि बहुत ही महंगा प्राइस में हमें तेल खरीदना पड़ता है. Whereas मतलब वी हैव टू मेंटेन दिस बैलेंस, ठीक है, कि अगर हमें ओपेक से हम खरीद रहे हमें बहुत महंगा पड़ रहा है और उसके बाद हमें अगर रशिया से हम खरीद रहे तो हमें थोड़ा सस्ते में मिल रहा है, व्हाई नॉट टू बाय दैट ऑयल, ठीक है. दूसरा चीज है, दे ऑल्सो वांट अस टू रिड्यूस आवर टैरिफ्स, हमारे जो प्रोटेक्शन ड्यूटीज है हम उसको रिड्यूस करें. सो आई थिंक अगेन डिप्लोमेसी नेगोशिएशन ही यहाँ पर काम आएगा. यहाँ पर कुछ एंड वी हैव टू वी कैन जस्ट यू नो डाइवर्सिफाई आवर पैलेट्स, ठीक है. हम अपना जो है डाइवर्सिफिकेशन हमें करना पड़ेगा ताकि हम यूएस पे ही डिपेंडेंट ना रहे. हम दूसरे कंट्रीज भी है, जैसे यूके के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, देन वी कैन फोकस अपॉन अफ्रीका, ठीक है. तो हम एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो है वो डाइवर्सिफाई करना होगा. एंड ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ हम यूएस को छोड़ सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम यूएस को आउट कर दें. No country in the world right now can just ouster USA. We cannot, but we can have talks, we can have discussions, we can have deliberations, ठीक है. लास्टली स्कूल एनरोलमेंट इन 3 to age 11 के वो जो ग्रुप का है वो उसका रिड्यूस हुआ है, ऐसा UDISE ने कहा है, ठीक है. ये जो नंबर है ना आपको 25 लाख से डाउन दिखेगा. 2-3 कारण यहाँ पे बोला गया है. पहला कारण है, मैं आपको जिस दे देती हूँ. पहला कारण है कि क्योंकि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है TFR जिसको हम कहते हैं, ठीक है, रिप्लेसमेंट लेवल्स कहते हैं, कि हमारा इंडिया का TFR लेवल हम लोगों ने 2.1 जो ग्लोबल एवरेज है उस पे हम अचीव कर चुके हैं, ठीक है. इंडिया हैज अचीव्ड टोटल फर्टिलिटी रेट. अब टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव ईयर्स में कितने बच्चे एक विमेन जो है इन हर रिप्रोडक्टिव ईयर पैदा कर सकती है, ठीक है. तो इंडिया में कितना हो रहा है 2.1, ठीक है. वी हैव अचीव द ग्लोबल एवरेज. कुछ कुछ जगह में तो 2.1 से भी कम है, ठीक है, कहीं कहीं पे ज्यादा है अभी भी, बट कुछ कुछ एरियाज में अभी भी 2.1 से कम है. जैसे दिल्ली हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर बहुत अच्छे से पॉपुलेशन, नॉट इन दिल्ली बट तमिलनाडु में काफी अच्छे से पॉपुलेशन जो है उन्होंने मेंटेन किया है साउथ इंडियन स्टेट्स ने, ठीक है. एंड दूसरी बात है कि जो बाल वाटिकाएं होती है ना, जैसे जो बच्चे एकदम छोटे ईयर्स में जो इन अभी अर्ली चाइल्डहुड केयर में, तो बहुत बच्चे जो है स्टैंड अलोन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं. जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा आपके घर के पास छोटे छोटे स्कूल्स होते होंगे ना, नॉट सो स्कूल वेल प्ले स्कूल्स होते होंगे जिसका हमें एकदम मतलब उतना आइडिया नहीं होता है. दे आर नॉट गवर्नमेंट रजिस्टर, मतलब ऑब्वियसली दे आर गवर्नमेंट रजिस्टर, पर उनका हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं होता है, ठीक है. तो इसी के ये 2 कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये जो 25 लाख का रिडक्शन है ये हमें देखने को मिला, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है, ठीक है. सो टोटल एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एज 3 to 11 तक, 3 to 11 का जो आंगनवाड़ी है, प्री स्कूल है, क्लासेस 1 to 5 है, यहाँ पर हमें 25 लाख का ड्रॉप देखने को मिला है कंपेयर टू 2023-24. मतलब ये पिछले साल का डेटा है, उससे पिछले साल का डेटा में आपको 25 लाख का गैप देखने को मिलेगा, ऐसा यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर एजुकेशन प्लस UDISE ने ये बात कहा है एजुकेशन मिनिस्ट्री को, ठीक है. UDISE ने कहा है कि 2023 में इट वाज 12.9 करोड़, अभी कम होकर इट इज 11.83 करोड़, ए डिप ऑफ 25 लाख ऑलमोस्ट, ठीक है. जो टोटल स्कूल एनरोलमेंट नंबर है
उसमें भी हमें 11 लाख से जो है रिडक्शन हमें देखने को मिलता है। ये बहुत कम है सिंस 2018-19 के लेवल से, ठीक है। डिक्लाइन हमें ऐसा देखने को मिल सकता है मे बी ऑफ डेमोग्राफिक शिफ्ट, जो डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है, बर्थ रेट जो है वो कम हो रहा है, टोटल फर्टिलिटी रेट मैंने आपको समझाया ना कि वो कम हो रहा है, उसके कारण जो पॉपुलेशन है उसमें भी हमें रिडक्शन देखने को मिलता है। एक्सेप्ट फॉर उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, सारे स्टेट्स ने बिलो रिप्लेसमेंट लेवल जो है फर्टिलिटी रेट्स हमने अचीव कर लिया है। फ्यूअर चिल्ड्रन आर बीइंग बोर्न, मे बी ये कारण है लोअर एनरोलमेंट रेशियो का। इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये 1.91 हो गया है विमेन पर विमेन, एक विमेन अब 1.9 मतलब 1.91 क्या है, मतलब या तो विमेन एक ही बच्चा पैदा कर रही है या फिर 2, इससे ज्यादा नहीं कर रही है, ठीक है। ये हमारा टोटल एवरेज है, ठीक है। ये एनएफएचएस जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, उन्होंने 2021 में ही ये बात क्लियर कर दिया था, ठीक है। ये बात उन्होंने कहा था। Officials said that calculating parameters such as gross enrollment ratio, the total enrollment in a specific level of education and expressed as a percentage of eligible official school age, ठीक है, जो 2011 के डेटा में यूज किया गया था। 2026 में जो डेटा यूज होगा इसमें, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट रजिस्टर्ड स्कूल भी कम थे, इसलिए हमारे पास डेटा भी थोड़ा कम है अब, लेकिन हमारे पास एक बेटर पिक्चर होगा, एक बेटर डेटा होगा हमारे पास। 2026 का जो डेटा जब हमारे पास अवेलेबल होगा उस समय हमारे पास बेटर डेटा सेट जो है वो अवेलेबल रहेगा, उसके बाद हम प्रॉपर और अच्छा काउंटिंग कर पाएंगे, ठीक है। ऑफिशियल ने ये कहा, ठीक है। होपफुली आपको ये टॉपिक जो है समझ में आएगा, आज के सारे टॉपिक्स आपको समझ में आएंगे। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। इफ यू हैव लाइक दिस सेशन, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, take care, study hard, and thank you.